हेलो। हाँ, सुन पा रहा है मुझे? ओके। सर्वप्रथम आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पतंजलि अष्टांग योग की प्रैक्टिकल कक्षा में मैं संजय गुरवेकर, राजमाता अहिल्या योग केंद्र से आप सभी योग साधकों, योग प्रेमियों और आपसे मैं क्षमा चाहूँगा कि ये सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है। तो हम सीधे प्रैक्टिकल सेशन की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग काफ़ी दिनों से योग अभ्यास कर रहे हैं, तो सीधे हम योग अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले योग कक्षा है, उसका जो सेशन है वो 3 बार ओमकार के उच्चारण और 3 ओम शांति के पाठ से करेंगे। सो सिट रिलैक्स इन एनी कंफर्टेबल which you can like most, whether it is Padmasana, Swastik, Vajra or Baddha Kona. Both the palms of the hands in Prana Mudra. Prana Mudra means you have to touch your tip of your thumb, touching to your tip of your ring finger and little finger, and keep them on head, neck and spine in single line. Samam Kaya Shirogrivam pose according to Bhagavad Gita. Eyes gently closed. Slow down your breath and calm down your mind. Observe your natural and spontaneous breathing process. Observe your breathing process for few times with your mental eyes. Let us begin our sadhana by chanting 3 Omkar loudly, followed by 3 Om all together. Slowly inhale. Again. Again. Om Shanti all together. Om Shanti Shanti. Rub your palms. Relax your eyeballs. Give nice and gentle massage to
slowly cross your both the palms, massage to your shoulders, upper arms, elbows, forearm, wrist and fingers. So now getting ready. Yoga session through Shuddhi Kriya, cleansing technique. A Drona Mudra, keep them on your knees, head, neck and spine erect, and slowly start. Forcefully exhalation, passive inhalation. भस्त्रावलोहकारस्य रेचपूर संसंभ्रव कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी. Kapalbhati practice is destroyer of all the kapha of the body. Continue. Stop the practice. Automatic stoppage of the breath. There will be no urge for few times to take breath in or out. This state is known as Kevala Kumbhak. Now getting ready for next practice. वीडियो बार बार रुक रहा है. तपन जी, अब वीडियो ठीक आ रहा है? आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं? दीपक जी नमस्कार. वीडियो देख पा रहे हैं आप? ओके. तो शुरू करें. सो नाउ गेटिंग रेडी. एकांतर नासिका. आप सभी लोगों ने कपालभाति का अभ्यास किया है.
आज मेरे इस प्रैक्टिकल लाइव से एकांतर नासिका कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एकांतर नासिका कपालभाति के अभ्यास के लिए आप अपने राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज कर दें और कपालभाति का अभ्यास जो है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट कीजिए। चलिए मेरे साथ एक साथ। Stop the practice. Same practice repeat from other side. Close your left nostril and start Kapalbhati. Practice from the right. 11 काउंट्स का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट कीजिए। Stop the practice. Relax your abdomen. Relax completely. जो शुद्धि क्रिया के बारे में योग कहता है कि आसन और प्राणायाम के पूर्व शुद्धि क्रिया करना चाहिए। इनको साधिए काया हो न लागे देह को आप बिल्कुल अपने मुंह से पूरी श्वास बाहर निकालेंगे, श्वासों को रोक लेंगे और जब तक आपकी श्वास रुकी रहेगी तब तक आपको अपने पेट को रैपिडली हिलाना डुलाना है। और जब आपको श्वास लेने की इच्छा उत्पन्न हो तो धीरे से इनहेल करें, शरीर को चार्ज करें और रिलैक्स कीजिए। 2 चक्र का अभ्यास करेंगे अग्निसार के। चलिए एक्सेल and flap your abdomen rapidly. एक चक्र और। Stop the practice. Eyes remain closed. Observe the changes taking place throughout your body. Relax your abdomen. Relax your whole body. Gently and slowly move to some pranayama practice. So first pranayama is known as Nadi Shuddhi Pranayam. बाएं हाथ को प्राण मुद्रा में रखिए अपने जंघाओं के ऊपर। दाएं हाथ से नासिकाग्र मुद्रा या प्राणायाम मुद्रा निर्मित करें। वेरी स्लोली एंड जेंटली स्टार्ट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल। जेंटली एंड स्लोली स्टार्ट इनहेलेशन फ्रॉम योर लेफ्ट। एक्सेल फ्रॉम द राइट। इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट एंड कंटिन्यू द प्रैक्टिस। Very slow, soft, smooth, gentle inhalation. Slow, soft, smooth, gentle. Very slowly and gently start inhalation from the left. Exhale from the right. From the right. Continue few more rounds.
Inhale, feel your lungs completely and fully. Exhale, empty your lungs completely. नाड़ी शुद्धिं वापनोति पृथक चिन्होपलक्षिताम शरीर लघुता दीप्तिर जठर अग्नि विवर्धनम. If you practice, you feel the lighter and lighter digestive fire improve. Yoga Shastra says. After from the left nostril, slowly stop the practice. Relax your whole. Let's move to pranayama is known as भ्रामरी प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे. वेरिएशन भस्त्रिका के काफी सारे वेरिएशन हैं. पहला जो वेरिएशन है, और कोरोना के लिए, कोरोना महामारी में भस्त्रिका प्राणायाम काफी लाभदायक प्राणायाम है. लंग्स की कैपेसिटी इस प्राणायाम के अभ्यास से काफी बढ़ती है. तो भस्त्रिका के पहले वेरिएशन को करेंगे. किस प्रकार करेंगे? दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए. दोनों हाथों की मुट्ठी को अपने कंधों के नजदीक रखें. इनहेलेशन के साथ दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और एक्सहेलेशन के साथ जाएंगे. इस प्राणायाम में जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होगी वो दोनों ही एक्टिवली होगी. इनहेल भी एक्टिव और एक्सहेल भी एक्टिव. किस प्रकार? चलिए, इनहेल के साथ दोनों हाथों को अप, फोर्सफुली. एक्सहेल, स्टार्ट. Relax your abdomen. Observe the automatic of the breath. Stop the automatic stoppage of the breath. सेकेंड राउंड स्टार्ट करें. चलिए, स्टार्ट. Stop the practice. Feel the warm automatic stoppage of the breath. भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है. उस गर्मी को न्यूट्रल करने के लिए इस प्राणायाम के पश्चात शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. तो यहाँ पर हम जो है शीतकारी और भ्रामरी को कंबाइन कर दिए हैं. इनहेल करेंगे शीतकारी, और जब आप एक्सहेल करेंगे तब भ्रामरी का उपयोग करेंगे. शीतकारी प्राणायाम के लिए क्लंच योर टीथ. प्लेस द टिप ऑफ द टंग इन बिटवीन योर क्लंच्ड टीथ. इनहेल फ्रॉम द माउथ, प्रोड्यूस शीत साउंड, एंड एक्सहेल भ्रामरी फ्रॉम द नोज. स्टार्ट कीजिए. केवल 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे. स्टार्ट.
Stop the practice. Feel the vibration, resonance produced by fine Brahmari spreading throughout the body. Rub your palms, make a cup and cover your eyes. Relax your eyeballs, give nice and gentle massage to your facial muscles. Very slowly and gently release. चलिए इसके बाद हम पतंजलि प्रणीत योगाभ्यास कर रहे हैं। तो इस योगाभ्यास में जो है पतंजलि के अनुसार जो है वो योगाभ्यास एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए योगाभ्यास पतंजलि ने बताया है, और रिलैक्सेशन के लिए योगा का जो निर्माण हुआ वो मन और शरीर को शांत करने के लिए हुआ। मनः प्रशमनोपाय योग इत्याभिधीयते, ए स्किलफुल ट्रिक टू कमिंग डाउन आवर माइंड टू साइलेंसिंग आवर माइंड इज नोन एज योगा। आज की कक्षा में हम लूजनिंग एक्सरसाइज, कुछ आसन, मुद्रा, बंध और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सो चलिए अब लूजनिंग एक्सरसाइज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। लूजनिंग एक्सरसाइज को लूजनिंग एक्सरसाइज, कुछ स्कूल इसे लूजनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, कुछ योगिक स्कूल इसे पवन मुक्तासन कहते हैं, कुछ एनर्जाइजेशन टेक्निक कहते हैं, और कुछ योगिक स्कूल इसे वार्म अप एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो लूजनिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योगिक प्रैक्टिस। सो लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए लूजनिंग एक्सरसाइज कई तरीकों से कर सकते हैं। आज हम लेट कर इसका अभ्यास करेंगे शवासन की अवस्था में। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार लूजनिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। तो लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए लाई डाउन ऑन योर मैट। लूजनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारे टोज से। मूव योर अटेंशन टुवर्ड्स योर टोज। Inhale and stretch your toes. Exhale and tightening them. Inhale and stretch. Exhale and tight. Inhale and stretch your toes. Do with full attention, full awareness. Exhale and tight. Inhale and stretch. Exhale, release and relax. Relax your toes. Awareness is a key factor in the yogic practices. Next loosening करेंगे। Shift your attention towards your ankles now. अपने ankles टखनों पर अपने ध्यान को ले आए। Inhale and stretch your ankles, toes towards your knees. Feel the stretch near your heels. Exhale and extend them. Inhale and flex. Exhale and extend. Inhale and flex. Gently and slowly start rotation. Rotate कीजिए clockwise. 1, 2, 3 and 4. Stop. Reverse. 4, 3. Rotate कीजिए 2 and 1. Stop the practice. Extend, flex, extend, flex and release. Relax your ankles, relax. Gently and slowly switch your attention towards your knees now. To loosen the knee joints, let us move to cycling. Cycling start करेंगे, हवा में साइकिल करेंगे। चलिए 1, 2, 3,
and 4. Stop, reverse, 4, 3, 2, and 1. Stop the practice. Inhale and pull your kneecap upwards. Hold it tightly. Hold it. Exhale and release. Again, pull up your kneecap and release. Gently and slowly switch your attention towards your waist. अब अपने अवेयरनेस अपने कमर पर ले आए. कमर में भी जॉइंट्स होते हैं. कमर के जॉइंट्स को लूज करने के लिए द्विपाद चक्रीय आसन का अभ्यास करेंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी ये बरतेंगे. जिन्हें स्लिप डिस्क है, जिन्हें कमर में दर्द है, वो इसका अभ्यास एक पाद चक्रीय आसन के रूप में करेंगे. एक पाद चक्रीय आसन के लिए आपको राइट लेग को अप करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है. बड़े से बड़ा शून्य, बड़े से बड़े वृत्त का निर्माण करना है. 4 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. 4 राउंड होने के पश्चात फिर बाएं पैर से करेंगे. तो मैं द्विपाद चक्रीय आसन का अभ्यास कर रहा हूं. सो जो भी द्विपाद चक्रासन के अभ्यास के लिए रेडी हैं, वे दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठा लें. जेंटली एंड स्लोली स्टार्ट रोटेशन. क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए टू लूजन योर वेस्ट जॉइंट. 1, 2, 3 and 4. Stop. Reverse. 4, 3, 2 and 1. Stop the practice. Relax. Relax your waist. Relax your whole body. Relax. इसके बाद अब हम अपने हाथों के जॉइंट्स की ओर आ जाते हैं. हाथों पे जो जोड़ है उसको लूज करने के लिए दोनों हाथों को 90 डिग्री तक ऊपर उठा लें. मूव योर अटेंशन टुवर्ड्स योर फिंगर्स. स्ट्रेच योर फिंगर्स. टाइट, स्ट्रेच, टाइट, स्ट्रेच, टाइट, stretch tight. Loosen your finger joints, taking away all the tension and stiffness from your fingers. Switch your attention towards your wrist now. Rotate your wrist clockwise direction. 1, 2, 3 and 4. Reverse. 4, 3, 2 and 1. Stop the practice. Attention shifted towards your shoulders now. दोनों हाथों को इस प्रकार अंतर्बंद कर लें, इंटरलॉक कर लें और दोनों हाथों को अपने कंधों के पीछे इस तरीके से ले आएं. सुप्त ताड़ासन में इनहेल के साथ स्ट्रेच योर आर्म्स. एक्सहेल एंड रिलीज. अब जेंटली एंड स्लोली स्टार्ट रोटेशन. रोटेट योर शोल्डर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 1 इस तरीके से रोटेट कीजिए. Loosen your shoulder joints. 2, 3 and 4. Stop कर दें. Relax. Same practice repeat from anti-clockwise direction. 1, 2, 3 and 4. Stop the practice. Relax. इनहेल के साथ पुनः एक बार अपने दोनों हाथों को अपवर्ड्स डायरेक्शन में खींचे. एक्सहेल, रिलीज. रिलैक्स योर शोल्डर्स. रिलैक्स. सो दीज आर द लूजनिंग एक्सरसाइज टू लूजन अवर वेरियस जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. और यह लूजनिंग एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है. लूजनिंग एक्सरसाइज के अभ्यास से शरीर के जोड़ों में जो दूषित रक्त जमा रहता है, वो दूषित रक्त लूजनिंग एक्सरसाइज के अभ्यास से दूर हो जाता है और वहाँ पर फ्रेश रक्त, फ्रेश ब्लड जो है उसका प्रवाह बढ़ जाता है. मेडिकल रिसर्च द्वारा यह देखा गया है. सो नाउ अब हम आसनों की ओर अग्रसर होंगे. सो आसन जो है, आसन की जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, स्थिरम सुखम आसनम.
स्थिरता और सुख की जो स्थिति है वो कहलाती है आसन। और उसको करने का एक नियम भी है, एक रूल भी है। उसका रूल है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की पूरी तरह शिथिलता रखते हुए आपका ध्यान जो है वो पूरी तरह आपके आराध्य की ओर लगा देने से आसन जो है वो आसन की सिद्धि होती है, ऐसा महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो आसनों का अभ्यास जो मैं क्रम भी बता रहा हूँ कि आसन पीठ के बल पर लेटकर करते हैं, पेट के बल पर लेटकर करते हैं, बैठकर करते हैं और खड़े होकर करते हैं। योगिक शास्त्र में आसनों को क्रम करने का कोई वर्णन नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार आसनों का चुनाव कर सकते हैं। और मेडिकल रिसर्च जो चिकित्सक डॉक्टर भी यह बताते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य रखने के लिए 4 प्रकार के आसनों का चुनाव करना चाहिए। पहला, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन, लेटरल बेंडिंग के आसन और ट्विस्टिंग के आसन। और योग शास्त्र में इसके काफ़ी सारे आसन है। बैकवर्ड बेंडिंग के लिए भी काफ़ी सारे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए भी है, ट्विस्टिंग के लिए भी बहुत सारे आसन है और लेटरल बेंडिंग के लिए भी काफ़ी आसन है। इन आसनों को करने से इस प्रकार हम अपने स्पाइन को ट्विस्टिंग देने से स्पाइन की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। सो चलिए अब हम सुपाइन पोजीशन में आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन मतलब पीठ के बल पर किए जाने वाले आसन। उसके पहले एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे, वेरी सिंपल ब्रीदिंग, जिससे आपका मन जो है वो आसनों की ओर रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हार्मोनाइजिंग योर ब्रीदिंग, इट्स रेगुलेट योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ब्रिंगिंग इनटू एक्शन all the lobes of your lungs for full utilization। ये जो है इसे एक पाद उत्तान आसना ब्रीदिंग का नाम दिया गया है। अल्टरनेट लेग राइजिंग ब्रीदिंग किस प्रकार करेंगे, जब मैं आपको ब्रीद इन का इंस्ट्रक्शन दूंगा तब आपको राइट लेग को 90 डिग्री तक उठाना है, ब्रीद आउट के साथ वापस आएंगे। पूरी जागरूकता और पूरी ईमानदारी के साथ चलिए अभ्यास करते हैं। Breathe in, right leg up. Breathe out, gently bringing it down, change. Breathe in, left leg up as much as you can. Breathe out, bringing it down, change. Breathe in, right leg up to the 90 degree. Breathe out, change. Breathe in, take it up. Breathe out and release. Relax for few seconds. Whole body relax. Let us move to next asana practice. Some asana practice in supine category position. So first asana is known as द्विपाद अंगुष्ठ आसना। द्विपाद अंगुष्ठ आसन के अभ्यास के लिए इन्हलेशन के साथ अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठा लें। जिन्हें लोअर बैक का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो एक एक पैर करके दोनों पैरों को उठाएंगे। अब अपने एंकल्स को फ्लेक्स करें। फील द स्ट्रेच ऑन योर हैमस्ट्रिंग्स मसल्स and very slowly and gently catch your big toes with your index finger। अपने तर्जनी उंगली की सहायता से पैरों के अंगूठों को पकड़ लें इस तरीके से। इसे कहते हैं द्विपाद अंगुष्ठ आसना। रुके रहें, जैसे मैंने आपको बताया कि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता और सुख के साथ कुछ देर इस स्थिति को बनाएं। और आसन का रूल प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता, माइंड ट्यून विथ योर इष्ट गॉड। रुके रहें
If you feel tired, uncomfortable or exhausted during the practice of asana, immediately terminate the asana and come to any relaxation position. चलिए द्विपाद अंगुष्ठ आसन को स्थानांतरित करेंगे द्विपाद अंगुष्ठ स्पर्श आसना में। अब ज्वाइन योर बोथ द सोल्स ऑफ योर फीट, पैरों के तलवों को एक साथ मिला लें। जिस प्रकार आप हाथों से नमस्कार मुद्रा करते हैं उस प्रकार इंटरलॉक करें और उसे लिटिल टोज के ऊपर रख दें इस तरीके से, और खींचें अपने पैरों के अंगूठों को अपने नाक की ओर। स्ट्रेचिंग फील करें पेल्विक प्रदेश पर, पेल्विक जोन में स्ट्रेचिंग फील करें। दिस इज आल्सो वेरी पावरफुल आसना। इट स्टिमुलेट योर प्रोस्टेट ग्लैंड। महिलाओं के लिए भी काफी लाभदायक आसना। रुके रहें। मेंटेन विथ ईज एंड कंफर्ट। यहां पर एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे। उस मुद्रा का नाम है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी कहते हैं हॉर्स को और मुद्रा का अर्थ होता है जेस्चर। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किस प्रकार करते हैं? इन्हलेशन के साथ अपने एनस स्फिंक्टर मसल्स को टाइट करते हैं। गुदा प्रदेश की मांसपेशियों को टाइट करें इन्हलेशन के साथ, थोड़ा सा होल्ड करें, एक्सलेशन के साथ लूज छोड़ दें। 2 चक्र और अभ्यास करेंगे अश्विनी मुद्रा का। इनहेल एंड पुल योर एनस स्फिंक्टर मसल्स, होल्ड इट, exhale and release it. One more round. Inhale and pull up, exhale and release. Relax your anal region, relax. अब आप एक्सलेशन करते हुए इस आसन को द्विपाद अंगुष्ठ स्पर्श आसन में लाएंगे। किस तरीके से करेंगे? एक्सहेल करें, सिर गर्दन पीठ धीरे धीरे ऊपर उठाएं, टोस को नाक की ओर लाएं और नाक से स्पर्श करने का प्रयास करें। रुके रहें एंड स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। कम टू स्ट्रेच, कम टू शव आसना। स्टिमुलेशन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन इज की फॉर ग्रोथ। रिलैक्स। इसके पश्चात हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन के भी काफी सारे वेरिएशन हैं। मरकट आसन में हम हमारे स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ होता है कि आप पीठ के बल पर आसन का अभ्यास कर रहे हैं। मरकट आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को कंधों के सीध में रख लें, दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों पैरों के तलवों के बीच लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी बना लें। इसे मेजर करने के लिए, इसे मापने के लिए आप यदि रबर मैट पर योगाभ्यास कर रहे हैं तो रबर मैट के किनारों पर अपने दोनों पैरों के तलवों को रखें। दोनों घुटनों को आपस में जोड़ें, एक अच्छा सा पूरक करें उज्जाई का। इनहेल, उज्जाई का ही रेचक करते हुए बाएं घुटने को बाएं ओर ट्विस्ट कर दें। हेड एंड नेक अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं। आंखें बंद। माइंड ट्यून विथ योर इष्ट गॉड। जीवात्मा परम आत्मा संयोग योग। यूनियन बिटवीन योर सेल्फ विथ यूनिवर्सल सेल्फ इज नोन एज योगा। Yoga is defined in this definition too. रुके रहें। लोअर बैक एक के लिए काफी लाभदायक आसना, और सभी लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं जो आसन बताऊंगा वो इस प्रकार के आसनों का चुनाव करूंगा कि सभी लोग इसका अभ्यास कर सकें। डाइजेशन के लिए भी काफी लाभदायक आसन।
इन्हलेशन के साथ सेंटर में आए, घुटनों को पुनः मिला लें और एक्सलेशन के साथ ट्विस्ट अपोजिट राइट ट्विस्टिंग दे दें। राइट नी ऑन द फ्लोर एंड लेफ्ट नी टचिंग टू योर राइट हील। लुक अपोजिट। यदि आप देखेंगे तो आपकी स्पाइन पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप गीले कपड़ों से पानी निथारने के लिए उसे निचोड़ते हैं। रुके रहें। सारे यौगिक अभ्यास, अधिकतर यौगिक अभ्यास रीढ़ और पेट पर ही बने हुए हैं, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए ही बने हुए हैं। इनहेल एंड स्लोली कम बैक। धीरे से वापस आ जाएं और एक्सलेशन के साथ रिलीज कर दें। रिलैक्स, रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड। इसके बाद जिस आसन का अभ्यास करेंगे उसका नाम है कंधर आसना। सो कंधर आसना फॉलोड बाय सेतुबंध आसना। कंधर आसन के लिए आप दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करें, पैरों के बीच कंधों के बराबर की दूरी बनाएं, हाथ आपके एड़ियों को स्पर्श करते हुए इन्हलेशन के साथ कमर और पीठ को ऊपर उठाएं। उठाइए ऊपर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना उठाएं। अपने चिन या ठुड्डी को कंठकूप से स्पर्श करने का प्रयास करें। रुके रहें। मेंटेन विथ ईज एंड कंफर्ट। रुके रहें। अब इस आसन को अर्ध सेतुबंध आसन में ट्रांसफर कर देंगे। अर्ध सेतुबंध के अभ्यास के लिए इन्हलेशन के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एक्सलेशन करते हुए कंधों के पीछे रख दें। यदि आप देखेंगे तो आपके शरीर की स्थिति एक अर्ध सेतु, हाफ ब्रिज, आधे पुल के समान हो जाती है। इसलिए इस आसन का नाम अर्ध सेतुबंध आसन रखा गया है। रुके रहें। और धीरे से वापस आ जाएं शव आसन में। रिलैक्स। आसनों के, अधिकतर आसनों के कंप्लीमेंट्री काउंटर पोज होते हैं और काउंटर पोज का अभ्यास, कंप्लीमेंट्री पूरक आसन का अभ्यास जो है वो आसनों के बेनिफिट को बढ़ा देता है। अब इसका जो कंप्लीमेंट्री पोज है उसका नाम है मत्स्य आसना। मत्स्य आसन के भी कई वेरिएशन है। मैं सहज मत्स्यासन का अभ्यास आपको बता रहा हूं। दोनों पैरों को मिला लें, अपने केहूनी के सहारे चेस्ट को अप करें, नेक को बेंड करें और क्राउन ऑफ द हेड को फ्लोर पर रख दें। अपने गले में तनाव उत्पन्न करें। यदि आप देखेंगे तो हमने कंधर आसन में गले को फॉरवर्ड बेंड किया था थायराइड के स्टिमुलेशन के लिए। यहां पर गले को बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं। ये इसका काउंटर है। रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स इन शव आसना। स्टिमुलेशन followed by relaxation. Relax. Gently and slowly come to Makar Asana on your tummy. प्रोन कैटेगरी के आसनों के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं जब पेट के बल पर आसन का अभ्यास करूंगा तो उसे प्रोन पोजीशन का नाम दूंगा। प्रोन कैटेगरी का अर्थ जो है वो पेट के बल पर किए जाने वाले आसन। सो मकर आसन में आ जाएं। 3 प्रकार के आसन यौगिक टर्मिनोलॉजी में। कल्चरेटिव टाइप आसन,
रिलैक्सिव टाइप आसन और मेडिटेटिव टाइप आसना, शरीर संवर्धात्मक आसन, शिथिलीकरण के आसन और ध्यानात्मक आसन। चलिए, इसके पश्चात पेट के बल पर जो आसन का अभ्यास करेंगे वो सीधा धनुरासन, ट्रेडिशनल आसन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें, राइट एंकल को राइट पाम से पकड़ लें, लेफ्ट को लेफ्ट से पकड़ लें। यदि दोनों घुटने मिले हुए हैं तो वेल एंड गुड। यदि नहीं हैं, जिनके पेट में ज़्यादा चर्बी है, जो ज़्यादा मोटे हैं, वो घुटनों के बीच थोड़ा सा अंतर रख सकते हैं। चलिए, इन्हलेशन के साथ अपने जंघा को ऊपर उठाएं, हेड एंड नेक ऑटोमेटिकली अप, मेंटेन विथ ईज एंड कंफर्ट। जस्ट रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ आसना, स्थिरम सुखम आसनम। जब भी आप आसन का अभ्यास करते हैं तो आसन की परिभाषा का स्मरण करें, उसके अनुसार ही आसन जो हैं वो लाभ प्रदान करते हैं, अन्यथा वो आसन न होकर एक एक्सरसाइज का फॉर्म हो जाता है। आसनेन रुजोहंती, आसनों के अभ्यास से धीरे धीरे शरीर की बीमारियां जो हैं वो समाप्त होने लगती हैं। पेट की अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए काफ़ी लाभदायक आसन। टोनिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। Soothe your nervous system, make your spine flexible and supple, strengthening your thigh muscles, cock muscles, and release. Relax in Makara Asana, stimulation followed by relaxation. Relax. अभी आपने देखा कि आपने अपने स्पाइन को बैकवर्ड बेंड किया, तो यह मैंडेटरी है कि आप अपने स्पाइन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बेंड करें। सो इसका जो काउंटर है वो है शशांक आसन। धीरे से शशांक आसन में आ जाएं, और शशांक आसन इसलिए कि आपको रिलैक्सेशन भी और काउंटर भी, दोनों लाभ एक साथ। चाइल्ड पोज, शशकासना, शशांक आसना। दिस इज आल्सो नेचुरल पोज। यह एक ऐसा आसन है जिसे नेचुरल पोज का भी नाम दिया गया है। माँ के गर्भ से ही यह आसन हम सीख कर आते हैं। रुके रहें। चलिए, अब आप घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं और पुनः ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं। मार्जारी ब्रीदिंग करने के लिए दोनों घुटनों के बीच 1 फुट की दूरी बनाएं। इस तरीके से माप लें, और 1 फुट and 1 palm distance between the palm and the knees. So stand comfortably with the help of your palm, knees and toes. Now start with inhalation. Breathe in, head and neck up, bring your back completely down. Breathe out, stretch your spine towards the ceiling, make an arch, chin touching to your chest. Breathe in, head and neck up. Breathe out, stretch your spine towards the ceiling. Breathe in, head and neck up, bring your back completely down. Breathe out, stretch your spine towards the ceiling. Breathe in, head and neck up, look up. Breathe out, उठाएं अपने स्पाइन को सीलिंग की ओर, चिन को लगा दें कंठ कूप से।
ब्रीद इन करते हुए सिर और गर्दन को ऊपर उठाइए, लोअर बैक को डाउन करें, रिलीज द टेंशन फ्रॉम द लोअर बैक, ब्रीद आउट एंड सिट बैक ऑन योर हील्स। जिन्हें घुटनों में शिकायत हो और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाएं। बाकी सभी योग साधक जो हैं वो वज्र आसन में बैठें। यह है वज्रासन एंड दिस इज आल्सो मेडिटेटिव पोज। यह भी एक ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में आता है। वज्र आसन एक ऐसा आसन कि जिस आसन का अभ्यास आप डायरेक्ट आफ्टर द मील, सीधा खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्र नाड़ी का स्टिमुलेशन इस आसन के अभ्यास से होता है। चलिए अब यहाँ पर एक लेटरल बेंडिंग पोज, बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग पोज का अभ्यास करेंगे। सो स्टैंड ऑन योर नीज, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। अर्धकटी चक्र आसना। अर्ध का मतलब होता है हाफ, कटी का मतलब आपकी कमर और आसन का अर्थ आपके शारीरिक स्थिति। अर्धकटी चक्र आसना इन नीलिंग पोजीशन। यह आसन खड़े होकर भी करते हैं, हम यहाँ पर नीलिंग पोजीशन घुटनों के बल पर इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं। किस प्रकार करेंगे? इनहेलेशन के साथ राइट आर्म अप टू द ईयर, स्ट्रेच इट अप, breathe out and laterally bend towards left. Left hand hanging freely and sliding down on your left thighs. Beautiful stretching right side. Contraction on your left. Make sure your right elbow and right wrist in one straight line. No bending your elbow, no bending your wrist. Mind tune with your इष्ट। रुके रहें। If you feel tired, uncomfortable or exhausted, immediate terminate the asana. Don't wait for my instructions. Inhale and slowly come back. Exhale and release. Relax for few seconds. जैसा मैंने आपको बताया कि आसनों के काउंटर पार्ट, काउंटर आसन कंप्लीमेंट्री आसन होते हैं। कुछ आसनों के अलग आसन कंप्लीमेंट्री होते हैं और कुछ स्वतः में ही कंप्लीमेंट्री आसन होते हैं। सो फॉरवर्ड बेंडिंग के पोज के कंप्लीमेंट्री आसन बैकवर्ड बेंडिंग के पोज होंगे। लेटरल बेंडिंग और ट्विस्टिंग के आसन सेल्फ कंप्लीमेंट्री नेचर का होगा। तो चलिए सेल्फ कंप्लीमेंट्री नेचर। सो सेम रिपीटेशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। इनहेल एंड लेफ्ट आर्म अप, स्ट्रेच इट अप, ब्रीद आउट एंड लेटरली बेंड टुवर्ड्स राइट इन दिस टाइम। माइंड ट्यून विथ योर इष्ट। पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग का जो अभ्यास है वो आपके शरीर को चार्ज करता है, शरीर को रिलैक्सेशन प्रदान करता है, जिसके कारण आप अपने दिन भर की दिनचर्या में फ्रेशनेस फील करते हैं। इनहेल एंड स्लोली कम बैक, एक्सेल एंड रिलीज, रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड। Let us move to next asana. Practice in sitting position is known as Ushtra Asana. Ustrasana is also traditional asana. इस आसन का अभ्यास हमारे पूर्वजों के द्वारा हजारों साल से किया जा रहा है अपने उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। देखिए, जो पूरी तरह नहीं झुक सकते हैं वो अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करेंगे। मैं पहले अर्ध उष्ट्रासन में जाऊंगा और उसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन में आऊंगा। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथों को अपने कमर पर रख दें और अच्छे से कमर को सहारा दें। इनहेलेशन के साथ बेंड बैक, हेड हैंगिंग फ्रीली डाउन। अब मैं पूर्ण उष्ट्रासन में जा रहा हूं। स्लोली ब्रिंग योर राइट palm टुवर्ड्स द राइट heel, लेफ्ट palm टुवर्ड्स योर लेफ्ट heel. Look in front, look up. Head hanging freely down, backward.
very powerful asana. And slowly come back, धीरे से वापस आ जाएं, रिलीज, come to वज्र आसना. Slowly unfold your legs. लेफ्ट लेग को अनफोल्ड करें, राइट लेग को अनफोल्ड कर दें. रिलैक्स इन शिथिल दंड आसना. थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले लें और इसके बाद इसके कंप्लीमेंट्री आसन पश्चिम तान आसना के लिए तैयार हो जाएं. पश्चिम तान आसन करने के लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को अपने थाइस के बाजू में रखें. इसे कहते हैं समस्थिति, सम स्थिति. इनहेलेशन के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एक्सहेलेशन के साथ धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग ले लें. कैच योर बिग टोस इफ पॉसिबल. यदि संभव हो तो आप अपने बिग टोस को पकड़ लें, और ज़्यादा संभव हो तो फोरहेड को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास करें. यदि संभव नहीं है तो आप अपने एंकल्स को पकड़ें, और एंकल्स भी नहीं पकड़ सकते तो घुटनों को पकड़ें. थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग लें, रुके रहें. उष्ट्रासन का काउंटर पोज पश्चिम तानासना. आप शशांक आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं. रुके रहें. अब रिलीज करेंगे, आसन से वापस आएंगे धीरे से. इनहेल करते हुए दोनों हाथों को अप करें, ब्रीद आउट एंड रिलीज. ब्रीदिंग इज अ ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड द माइंड. इसके पश्चात जिस आसन का अभ्यास करेंगे उसका नाम है वक्र आसना, ट्विस्टिंग पोज. चलिए, वक्र आसन के लिए राइट लेग को फोल्ड कीजिए और राइट एंकल और लेफ्ट नी एक ही सीध में रहेगा, ध्यान रखें. राइट एंकल और लेफ्ट नी. इनहेलेशन के साथ लेफ्ट आर्म अप करें, ब्रीद आउट एंड ट्विस्ट टुवर्ड्स राइट. लुक बैक, ट्विस्टिंग दे दें इस तरीके से और पीछे की ओर देखें. आपका जो ध्यान है पूरी तरह वेस्ट और स्पाइन पर. अपने रीढ़ को इस प्रकार रखें, शरीर के भार को इस प्रकार रखें कि शरीर का भार दाहिने हाथ पर ना आए. दाहिने हाथ को केवल सपोर्ट के लिए रखेंगे फ्लोर पर. पीछे की ओर देखेंगे, आंखें बंद, पूरा ध्यान आपके इष्ट आराध्य देव की ओर. जीवात्मा परम आत्मा संयोगः योगः. Union between yourself with universal self is known as yoga. अब आप इनहेल करते हुए आसन को रिलीज करेंगे, वापस उल्टे क्रम में आएंगे एंड रिलीज. रिलैक्स इन शिथिल दंड आसना. मैंने पहले ही बताया कि आसन के अभ्यास में जकड़न, दर्द और थकावट का अनुभव होने के पश्चात आपको तुरंत ही किसी भी शिथिलीकरण के आसन में आ जाना चाहिए. प्रत्येक पोजीशन, चाहे वो सुपाइन हो, प्रोन हो, सिटिंग हो या स्टैंडिंग पोज है, जब भी आप थकावट उत्पन्न करते हैं तो धीरे से शिथिलीकरण के आसन में आ जाएं. और सभी स्थितियों में एक एक दो दो शिथिलीकरण के आसन भी हैं. यह हम इसे कहते हैं शिथिल दंड आसना. चलिए काउंटर करेंगे वक्रासन का. दोनों पैरों को मिलाइए, बाएं पैर को फोल्ड करें, इनहेलेशन के साथ राइट आर्म अप करें, ब्रीद आउट के साथ लेफ्ट की ओर ट्विस्ट कर दें अपने शरीर को. पीछे की ओर देखें. डायबिटीज मेलिटस के लिए काफी लाभदायक आसना. सूदन योर नर्वस सिस्टम, मेक योर स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड सपल. रुके रहें. चलिए
आसन से वापस आ जाएं। इनहेल एंड राइट आर्म अप, एक्सेल एंड रिलीज, रिलैक्स। समय की कमी के कारण स्टैंडिंग सीरीज के आसन का अभ्यास आज नहीं कर पा रहे हैं। अब सीधे ही आप शव आसन में आ जाएं। लाई डाउन ऑन योर बैक, लाई डाउन ऑन योर बैक। शवासन के अभ्यास के लिए लेग्स अपार्ट, 2.5 feet distance apart, hands little away from the thighs, palms facing the ceiling, fingers semi-flexed, eyes gently closed, facial muscle smiling and relaxed. Let the whole body relax. Sinking on the floor, collapsing on the floor, relax. We are stretching and stimulating our whole body through various yogic techniques. Now relax our whole body through Shavasana. Shastra says Shavasanam Shrantiharam Shramharam Chitta Vishranti Karakam. Shavasana release all the tension and stresses from the body and the mind, and responsible to relax our whole body nicely. Be aware of my instruction and follow them honestly. From this overall awareness, gently and slowly switch your attention towards your abdominal movement and observe the upward and downwards movement of your abdominal wall. Observe this movement for a few times with your mental eyes. वातावरण की जागरूकता से अपना ध्यान हटाते हुए अपनी एकाग्रता अपने पेट पर ले जाएं। पेट के आवागमन के प्रति जागरूक हो जाएं। And now synchronize this abdominal movement with your breathing. As you inhale, abdominal moves up like a balloon. As you exhale, abdominal sinking down and deflate like a balloon. Observe this movement for a few more times with your mental eyes. अब आप अपने पेट के प्रसारण और आकुंचन को अपने श्वास प्रश्वास के साथ समायोजित कर दें। प्रत्येक पूरक श्वास लेने से आपका पेट प्रसारित हो रहा है और प्रत्येक रेचक अर्थात एक्सलेशन के साथ आपका पेट आकुंचित हो रहा है। प्रसारण और आकुंचन की इस पेट की क्रिया को अपने मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। पूरी तरह नियंत्रित उदरीय श्वसन, completely controlled abdominal breathing, resulting the endorphin hormone, which is responsible to reduce your tension, secreted more. चिकित्सकीय शोध के द्वारा यह देखा गया है कि यदि आप पूरी नियंत्रण के साथ उदरीय श्वसन का अभ्यास करते हैं तो इंडोर्फिन हार्मोन जो आपके तनाव प्रबंधन, तनाव को दूर करने में सहायता देता है, उसका श्रवण, उसका स्राव बढ़ जाता है उदरीय श्वसन की क्रिया में।
Inhale, abdominal moves up. Exhale, gently bringing it down. Gently and slowly draw your attention towards the chirping of the birds. अब आप अपनी जागरूकता इस शरीर से बाहर ले जाएं और बाहर पक्षियों की चहचहाट या जो भी ध्वनि आप स्पष्ट सुनाई कर रहे हैं उस ध्वनि के प्रति जागरूक हो जाएं। Slowly bring your awareness back on your physical body. Feel your own body by moving your toes and fingers a little. Move your toes, move your fingers, join your legs. Bring your both the arms upwards and keep them on the floor. Interlock your fingers. Inhale and stretch your whole body. Supta Tada Asana में आ जाएं. Exhale and release. Go for palming, rub your palms. Make a cup and cover your eyes. Relax your eyes. Very slowly and gently release. And from the left side, बाईं करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएं, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, स्वास्तिक या वज्र, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ आपके प्राण मुद्रा में, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत। कंक्लूड करेंगे, इस सेशन का समापन करेंगे एक बार ओंकार का उच्चारण और 3 शांति पाठ मेरे साथ एक साथ। इनहेल, ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, make a cup and cover your eyes, relax your eyes, give nice and gentle massage to your facial muscles. Very slowly and gently release. Thank you very much. एक बार पुनः आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे यह पवित्र मंच, योग की थोड़ी सी प्रैक्टिस, एक आपके जैसा ही योग साधक तो योग अभ्यास करने के लिए प्रदान किया। आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।